two, three. 1, 2, 1, 2, 3. That's great. That's great. That's enough, guys. That's enough. Okay, everyone, back to your seats. मैं परेशान 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 परेशान. Khushi, after all this, what happened to you? Now what to tell you, Stuti? I am frustrated with my daily life routines, like from office to study and back to office. I have no time even to think about my own mental life and physique. Well, that's not the way, yaar. Yeah, I know. Now what you would say, that mental health and physique are important part of our lives? Now, this is why we have our next speaker. She is a chartered accountant, a fitness guru, an internet person. She has shared her fitness journey, mental health journey, and education journey with us. You may ask, what makes her relevant? Well, she is a well-renowned holistic health coach, takes an approach to the health that goes beyond the conventional ways of medicine. She focuses on the integrative lifestyle changes as holistic healthcare, medicine, and life coaching. So audience, hold your hearts as to make you fit and depression free. Here's coming our next renowned speaker, CA Surbhi Gandhi ma'am. Guys, before that, we have one small video of her we would like you to see. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Now, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से. now we would like Ms. Sarangi Bhoot, MSM of Vikasa ICI to escort her to the stage. And now I would request Ms. Sarangi Bhoot to felicitate her.
everyone. All good? सुबह से बैठा, I am sure कि y'all must be tired, but I hope कि y'all were having a great day. So hi everyone, this is C.A. Surbhi Gandhi and I am from Mumbai and I cleared my CA in May 2022. So it's been like less than 2 years, almost 2 years, and it feels great क्योंकि trust me, कुछ 2 सालों पहले I was hosting national conferences and today I am on the other side. It feels great. And one thing that I can tell you is, if someone like me who can come here, trust me, each one of you, every single person sitting here has that potential to be on the other side of the stage. So, but before I start, I just have a few asks from you, and that is everyone, come on, just sit straight. Come on, jaldi se. I won't make you do exercise or anything, just sit straight. Come on, done? Okay, and rule number 2 is, can you have some silence? Okay, sit straight. Rule number 2 is, smile. ऐसे डराओ मत मेरे को, इतने सारे लोग हैं, everyone come on, smile. Few things, हंसने का समझ यार मेरे पे. Y'all can smile. Okay, but before I start, I just want to tell you, I assure you, आज जितने भी minutes मेरे पास है आप लोग के साथ, I am sure कि आपको बहुत मजा आने वाला है. So are you ready? पक्का? Just make sure that be alert, be attentive. If I ask any question, just make sure that you answer it. ठीक है? I promise you मजा आने वाला है because I value your time. And आज के ज़माने में we all know कि भाई टाइम कितना ज़्यादा important है, right? अगर आप मुझे अपने 20 minutes या अपने 30 minutes भी देते हो ना, I assure you, you get that value for time. But पता है मज़ा कब आएगा? I am sure, I am ready to give my 100%. I just need 100% attention from your end. पक्का? Promise, everyone? Awesome. Okay. तो हम सबको अकाउंट्स में, we are all CA students, right? तो हम सबको अकाउंट्स में सिखाते हैं असेट और लायबिलिटी. बट आपको पता है आपकी एक्चुअल में जो रियल असेट है, हेलो, हेल्थ. अच्छा तो फिर आपको तो पता है फिर मैं क्यों आई मुंबई से. बोल रहे चले जाओ, कौन है यार? ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी जो रियल असेट है, अकाउंट्स में आपको पढ़ाएंगे असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, बट लेट मी टेल यू आपकी जो रियल असेट है, एंड वो है आपका शरीर, आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ. नो मैटर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लाइफ में जो चाहिए सब कुछ अचीव कर लो, बट अगर आपने ये एक चीज अचीव नहीं की ना, तो समझ लो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया. अग्री करते हो? आई टेल यू, हम जब नई कार खरीदते हैं, हम जब कार खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं. टाइम टू टाइम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, उसको सर्विसिंग के लिए देते हैं. हम इंश्योर करते हैं कि कार को लग नहीं जाए, टुक नहीं जाए, कोई स्क्रैचेस नहीं आ जाए, राइट? एक नॉन लिविंग थिंग की हम इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी ज़्यादा हम ये इंश्योर करते हैं कि वो ठीक रहे, और हम खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखते. डू यू रियलाइज आप लाइफ में एक हेल्दी पर्सन को क्या चाहिए पता है? एक हेल्दी पर्सन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए. कार, बंगलो, घर, पैसे, फेम, डिग्री. एक हेल्दी पर्सन को सारी चीज़ें चाहिए. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक अनहेल्दी पर्सन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ योर हेल्थ. हेल्दी पर्सन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट एक अनहेल्दी पर्सन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए. और पता है इसकी वैल्यू कब रियलाइज होती है? जब वो चली जाती है. लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, हेल्थ की बात. पता था मुझे. यहाँ पे बहुत लोग हैं, जितने भी लोग हंसे ना उनके साथ वही हो रहा है. तो वो हाँ भी बोल रहा है. तो जब हेल्थ चली जाती ना, उसकी वैल्यू आपको तब समझ में आती है. जब आपको एक छोटी सी सर्दी भी हो जाए, नाक बंद हो जाए, बहुत छींक आ रही है, सर्दी हो जाती है, तब हम पता है उस दिन बैठे बैठे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, हम क्या सोचते, हम वो टाइम के बारे में सोचते जब हम ढंग से एटलीस्ट सांस ले पाते थे, एटलीस्ट ढंग से हम ब्रीथ कर पाते थे. हमें सिंपल ब्रीदिंग भी एक प्रिविलेज लगता है उस टाइम पे. आई होप आपको कोई बीमारी ना हो, आई होप भगवान आपको हमेशा हमेशा हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे. बट कभी अगर हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं,
यार पहले वाला टाइम कितना सही था, क्यों तुम कुछ कर नहीं रहे थे? सिंपल ब्रीथ करना भी सच अ प्रिविलेज. सो मेक श्योर, हेलो, ओके, सो मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो. एंड लेट मी टेल यू दिस, everything that you do in your life depends on only one thing. Anyone? Yes? कोई भी? Random answers. Be yourself. अच्छा. Everything that is happening in your life is dependent on this one thing, and that is the choices that you make every single day. कितने लोग agree करते हैं? Yes, आपके पास चॉइस था. ये जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत लोगों को अहमदाबाद में इसके बैनर्स गए होंगे. यू हैड अ चॉइस टू अटेंड दिस और नॉट टू अटेंड दिस. अब जो अटेंड कर लेता है वो सीख के चला जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो कुछ नए चेंजेस इंप्लीमेंट कर लेता है. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक एवरी सिंगल डे. हर रोज आपके पास एक चॉइस होती है. अ चॉइस to either wake up early or to sleep till late. A choice to eat healthy or to eat junk. A choice to exercise or not to exercise. A choice to study or not to study. And trust me, your life is dependent on the choices that you make every single day and not on your circumstances. एक इंसान जो चॉइस लेता है कि हाँ, अगर कोई इंसान डिसाइड करता है कि यार कल से मैं रोज सुबह 5 बजे जगूंगा. आई टेल यू, मैं जब सीए कर रही थी ना, मुझे फेलियर से इतना ज़्यादा डर लगता था ना. मैं एवरी सिंगल डे, भले कितनी बारिश हो, कितनी ठंड हो, एवरी सिंगल डे 4 AM आई वॉज ऑन माई स्टडी टेबल. तो जितने भी लोग जिनको फेलियर से डर लगता हो, अगर फेल होने से डर लगता है ना, तो लाइफ में इतनी मेहनत करो ना कि फेल ही ना हो. एंड nobody will push you. You will have to do it for yourself. So start making good choices. Start making right decisions in life. आपको हर चीज़ के 2 choices मिलेंगे. And trust me, जो सबसे easy वाला होएगा ना, वो आगे जाके सबसे आपको regret देगा. अभी आप procrastinate कर लोगे, अभी आप आलस कर लोगे, अभी आप healthy choices नहीं लोगे. भले आज आपको easy लग रहा है, but आगे जाके लगेगा काश कर लिया होता. So make sure, the first thing that you learn from here is start making right choices in your life. Now coming to the second point. सब CA students हैं, कितने लोग फाइनल में हैं? रिजल्ट आ रहा है क्या? Sorry, no personal questions. Okay, and इंटर में? Oh, huge. Okay. Now जब आपने सीए डिसाइड किया कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जब आपने डिसाइड किया कि आपको सीए बनना है, तो आई वांट आंसर्स. आर यू रेडी? तो आई विल टेल द नेक्स्ट पॉइंट. आंसर्स देने के लिए रेडी हो? ओके, ठीक है. सो आई वांट टू नो कि जब आप सीए कर रहे हो, हम जब सीए करते हैं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ठीक है, कि ये रीज़न की वजह से सीए करना. आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू. उसके बाद मैं अपना रीज़न बताऊंगी. एनीवन हाथ ऊपर करके कोई बताना चाहता है? यस, हाँ, बोलो. क्या? पैसा. और यस, क्या? इज्जत. ओके. सिक्योरिटी. क्या? शादी. ओके. सो जब हम सीए कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक रीज़न होता है. वी ऑल हैव अ वाई फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स. एंड जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न रहेगा ना कोई चीज़ करने का, उतना ही ज़्यादा आपके पास वो चीज़ को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन रहेगा. नाउ अब ये आपने आंसर किया कि किसी को पैसे के लिए करना है, किसी को रिस्पेक्ट के लिए करना है. बहुत सारे लोगों का होगा. मेरे पापा का सपना था और मुझे ऐसा था कि उनका नहीं हुआ, तो जो सपना पापा ने देखा वो सपना मुझे पूरा करना था. सपना पापा ने देखा था, पूरा उसे मैंने किया. सो तो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न. बट आई टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग. आप जैसे उन्होंने बताया कि पैसे के लिए करना है, ऑनेस्ट आंसर.
अब आप पैसे के लिए सीए कर भी लोगे, बट क्या होने वाला है, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे तो क्या होएगा, जितने भी पैसे आपने कमाए ना किधर जाएंगे, दवाई में जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। सही टाइम पे सही चीज करना स्टार्ट, हाँ हाँ, सही टाइम पे सही चीज करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो भले आप पैसे के लिए कमा रहे हो, आज आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आगे जाके आई डोंट वांट कि वो पैसे आपके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में लग जाए। रेडी, अग्री करते हो? यस। हम क्यों करते हैं सीए? पैसे कमाए, अपने सपने पूरे करे, शौक पूरे करे, मम्मी पापा को वो लाइफ दे पाए। जो मेरा तो ऑनेस्टली मेन मोटिवेशन ये है कि हमेशा से हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने उनका बेस्ट दिया यार, और क्या करें आपके लिए, और वो सिर्फ आपकी सक्सेस चाहते हैं। तो अब आपकी बारी है कि यू गिव देम द लाइफ दैट दे डिजर्व। तो आपने कहा कि पैसे के लिए करना है, शौक पूरे कर सको, सारी चीज़ें कर सको, अचीव कर लो जो सारी चीज़ें हैं, बट अगर ये एक चीज़ साथ नहीं देगी ना, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कितना भी कुछ अचीव कर लो, इट इज़ एज गुड एज आपने कुछ अचीव नहीं किया अगर आपके सारे पैसे हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में जाते हैं। सो माई ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से हियर इज, प्लीज़ सही टाइम पे आप, यू आर एट द राइट स्टेज, यू आर एट द राइट एज। स्टूडेंट लाइफ वो एज होती है ना, इट इज़ दैट फेज ऑफ योर लाइफ दैट इज़ द बेस फॉर योर करियर, योर बिजनेस, योर जॉब, एनीथिंग दैट यू डू। स्टूडेंट लाइफ एक बेस होता है, तो ये डिसाइड करता है कि आगे जाके आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, कितना ज़्यादा आपका शरीर साथ देगा। सो सही टाइम पे सही चीज़ करना शुरू करो, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डूइंग दिस एंड स्टे मोटिवेटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम ओके, टेल मी, आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, कितने लोग फिट दिखना चाहते हैं? एवरीवन, एब्स चाहिए, हेल्दी रहना है, एकदम फिट दिखना है, हाँ? अपने लिए या उसके लिए? अपने लिए, सॉरी मैं भूल गई थी आप सीए स्टूडेंट्स हो। ओके, हम सब चाहते हैं कि हम फिट दिखे, हम फिट रहे, बट कैसे, मैं बताऊं, बता दूं? आज घर पे जाना, सबसे पहले तो बेड पे लेटना, ठीक है? उसके बाद, अरे पूरा तो सुनो यार, उसके बाद YouTube पे जाना और सर्च करना एक्सरसाइज वीडियोस, एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट, या जो भी एक्सरसाइज, YouTube पे जाके सर्च करना और सिर्फ देखते रहना, देखना, साइड में चिप्स रखना, एक सॉफ्ट ड्रिंक रखना, YouTube के वीडियोस चलाना और जिम के वीडियोस, लोगों की जिम स्टोरीज वीडियोस देखते रहना। और अगर कहीं और फिटनेस वीडियोस नहीं मिले तो मेरा YouTube चैनल भी देख सकते हो, बट जस्ट टेलिंग, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आप जाना, फिटनेस वीडियोस देखना और ऐसे करके बस वो देखते रहना और फिट हो जाओगे, ठीक है? देखो, कीप ऑल दैट असाइड, नाउ कम टू अ वेरी सीरियस थिंग, एंड दैट इज, ऐसे फिट नहीं होने वाले हो यार, ये आपको भी पता है। इतनी मैच्योरिटी है कि यार तुम बेड पे पड़े पड़े रील स्क्रॉल करते करते, लोगों के फिटनेस वीडियोस देख के दिन भर का, दुनिया भर का जंक खा के फिट नहीं रह सकते, फिट नहीं दिख सकते। तो आज एक सीक्रेट बता दूं, हाँ? अब मुंबई से आई हूँ, बता के ही जाऊंगी। देयर इज अ वेरी सिंपल 9 to 1 रूल। ये इतना सिंपल है एंड इतना एक्शनेबल है। हम स्टूडेंट्स लेजी होते हैं, वी वांट यू नो स्मॉल स्टेप्स, वी वांट क्विक रिजल्ट्स, स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। तो ये 9 to 1 रूल, इट इज समथिंग दैट एवरीवन कैन डू इट, नो मैटर वॉट एवर योर एज इज। 9 is 9,000 steps. 8 is 8 glasses of water. 7 is 7 hours of sleep. आप कम सो के ज़्यादा पढ़ाई कभी भी नहीं कर सकते हो। 6 is 6 minutes of meditation. 5 is दिन भर में any 5 fruits and vegetables. 4 is 4 short breaks. दिन में पढ़ाई करते हो, पूरे दिन पढ़ रहे हो, 3 घंटे का स्लॉट है या 2 घंटे का स्लॉट है, टेक 4 ब्रेक्स। स्टडी शेड्यूल के बीच में ट्राई टू इंक्लूड ब्रेक्स। 3
3 is 3 healthy meals. दिन में make sure करो 1 healthy meal in the morning, evening में light snacks and dinner. 2 is 2 hours of gap between your dinner and your bed time. सोने से पहले 2 घंटा पहले खाना खा लो, because your body needs 2 hours, at least 2 hours for digestion. So make sure कि तुरंत खाना खा के नहीं सोना है. And 1 is any one physical activity. जिस इंसान ने ये 9 to 1 रूल फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इट इज सो सिंपल एंड सो एक्शनेबल. सिर्फ ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, 9 to 1 रूल. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू माई स्टोरी. जब मैं CA कर रही थी, जब इंसान पढ़ता है तो मेजरली उसको पता है क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड इधर उधर भटकता है. एंड जब डिस्ट्रैक्शन होता है वो तो ठीक है, बट जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? बताऊं? जो चीज़ याद रखनी है वो याद नहीं रहती है, और जिसे भूलना चाहते हो उसकी याद सताती रहती है. ये जो भी हो वो बोले. ओके, सो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है. माइंड का एक नेचर है कि अगर उसको किसी चीज़ में ईज मिलेगा, किसी चीज़ में उसको कंफर्ट मिलेगा तो भटकता है. इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड. बट वी आर ऑल CA एस्पिरेंट्स एंड वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे. जो भी लोग अभी एग्जाम्स देके आए होंगे उनको पता है कि सिलेबस कितना ह्यूज रहता है, कितना वास्ट रहता है. एंड वी ऑल वांट कि हम बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करें, बिना फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें. Now one thing that I did very religiously is, जब भी मुझे डर लगता था, because पैनिक, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है CA जैसे कोर्स में, तो जब भी मुझे डर लगता था सबसे पहले तुरंत या तो बुक बंद कर दो एंड टेक अ 15 minutes पावर नैप. मतलब मेरे लिए आई डोंट नो व्हाई सोना वाज द बेस्ट सोल्यूशन. यार सो जाओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा, वापस वेक अप फ्रेश एंड स्टार्ट स्टडिंग अगेन. Second thing what you can also do is very easy, very simple, free में है, and that is meditation. Now I don't know, this is the most underrated thing I feel. पता सबको है, but करते बहुत कम लोग हैं. And जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ उस दिन से बंद हो जाती, उस दिन से बदल जाती है. मैं ये देख रही थी आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं. उस दिन से आपकी लाइफ बदल जाएगी. अब कितने लोगों को ऐसा था कि मेडिटेशन करते वक्त भी ध्यान भटक रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ना पढ़ाई में कर पा रहे हो ना मेडिटेशन में. उसका एक सिंपल सोल्यूशन जो मैं करती थी, एंड दैट वाज, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, लाइफ में जो भी चाहिए विजुअलाइज करो. ऐसे रिएक्ट, आई टेल यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैंने जितना भी लाइफ में जो भी जो मुझे करना था वो किया है, एंड वन मेजर थिंग वॉज विजुअलाइजेशन. मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नहीं पता है, या तो ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. लेट्स डू वन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, कम ऑन एवरीवन, सिट स्ट्रेट, रिलैक्स, शांत, साइलेंस. कम ऑन, सिट स्ट्रेट, gently close your eyes, back straight, relax your body, leave your shoulders loose, leave your neck loose, leave your hands loose, rest your palm on your thighs, leave your hands loose. Relax your body. Leave your legs loose. Relax. Relax. And relax. Now slowly take a nice deep breath. Slowly inhale
and slowly exhale. Come on, जो seriously कर रहे, please don't disturb them. Slowly inhale and slowly exhale. Now, one thing that you genuinely want in your life, assume that you already have it. Feel the happiness. वो खुशी महसूस करो यार, वो क्या मोमेंट होगा. It could be anything. It could be a CA degree. See that happiness on your face, your parents' face. यार सब कितने खुश है, अगर आंसू है तो भी वो खुशी के आंसू है. Feel that happiness. Trust me, it is the best thing that can happen in your life. See yourself becoming that person. See yourself achieving it. वो दिन, वो मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होने वाला है, जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी दैट यू रियली वांट इन योर लाइफ. आपके पेरेंट्स कितने खुश है, आप कितने खुश हो, फील दैट हैप्पीनेस. नाउ जस्ट से थैंक यू, thank the universe, thank God for giving you that thing. Slowly take a nice deep breath, inhale. And slowly exhale. One last time, inhale. And slowly exhale. Now gently join both your hands, rub your hands. Place them on your eyes. And धीरे से open your eyes. Slowly open your eyes. Any idea हमने कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है एकदम एनर्जेटिक. ये तो सो गए थे, आप क्या मस्त बोल रहे हो? मेरे को हंसी आ रही थी यहाँ पे. अच्छा लगा? Clap for yourself, everyone, for yourself. अब सोचो, ये चीज सोचने में इतनी मजेदार लग रही है, जो चीज आपने अचीव कर लिया, तो सोचो रियलिटी वाला क्या मोमेंट होगा. और वो मोमेंट के लिए ना मेहनत करोगे तो डेफिनेटली होगा. अगर कुछ साल पहले मैंने एक चीज सुनी थी, एंड दैट इज, मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, एंड दैट इज इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट. इंसान सीए बाद में बनता है, डिग्री बाद में आती है, सबसे पहले अगर वो बनता है ना, एंड दैट इज वो दिमाग से बनता है. अगर वो दिमाग से बन सकता है, इफ यू कैन थिंक लाइक अ सीए, इफ यू कैन एक्ट लाइक अ सीए, इफ यू कैन बिहेव लाइक अ सीए. अगर एक सीए होता है वो मौज मस्ती नहीं करता, वो बिहेव योरसेल्फ लाइक अ सीए. एंड देन देयर हैज टू बी सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. यार आईसीए के पास इतने सारे बच्चे, व्हाट इज दैट वन यूनिक थिंग वो आपको पास करे? सो दिस वाज जस्ट एनी आइडिया हमने कितने मिनट किया होगा? 5-6 minutes, आई थिंक इवन लेस, 3-4 minutes हार्डली किया होगा. एंड यू रियलाइज ये 3-4 minutes ने कितना आपको फ्रेश फील करवाया. जो लोग सो रहे थे वो आंसर मत करो, बट जिन्होंने जेन्युइनली किया, सोचो कि अगर आप ये रोज करोगे, दैट इज गोइंग टू काम योर माइंड. ये ना पढ़ाई इंसान, आई टेल यू वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड इन माई सीए जर्नी, एंड दैट आई रियली डोंट वांट दैट यू रिपीट. अब ये गलती की वजह से मैं एक बार फेल हो गई, मुझे एक बार अटेम्प्ट लग गया, तो किसी और की गलतियों से सीख लो, नहीं तो भगवान करे तुमको भी अटेम्प्ट ना लगे. फर्स्ट थिंग इज, मैंने ना लाइफ में एक चीज़ सीख ली है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है, सीए बनना हो, कोई चीज़ अचीव करनी है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज आपका माइंड शांत रहना चाहिए. क्योंकि जब आपका माइंड शांत है ना, आप कुछ भी करो, आप उसमें 100% दे पाओगे. अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस चल रहे, अगर आपके माइंड में डिस्टर्बेंसेस चल रहे ना, तो ट्रस्ट मी, आप जो काम कर रहे हो, भले वो पढ़ाई हो, इट कुड बी एनीथिंग, इरिटेशन रहेगी. ये मेरे साथ होता है, इरिटेशन रहेगी, या फिर माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा.
इसलिए कुछ भी करो, माइंड का शांत रहना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट कंट्रोल बाहर की दुनिया, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर माइंड एंड योर रिस्पॉन्स टू इट. सिचुएशंस आएगी, मे बी चैलेंजेस भी आएंगे, बट ईच चैलेंज इज ओनली अ सिचुएशन. सो व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर माइंड एंड योर रिस्पॉन्स. अगर ये दो चीज पे आपने काबू पा लिया ना, नथिंग कैन अफेक्ट यू. सो आर यू रेडी टू कंट्रोल योर माइंड? विल यू प्रॉमिस मी कि आप माइंड से शांत रहोगे? ये गलती मैंने करी थी फर्स्ट ईयर में, इतनी पढ़ाई की, मेरा पूरा रूम सिर्फ कागजों से भरा होता था, नोट्स. इनफैक्ट मिरर पे भी मैंने कॉस्टिंग के नोट्स चिपका दिए थे थ्योरी के, कि यार लर्न करके जाएंगे, एग्जाम में आ जाएंगे. द होल पॉइंट इज इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर एक चीज पे जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, एंड दैट वाज, मुझे लगता था कि एक्सरसाइज करो इज ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्थ इज ओनली फिजिकल. नो, हेल्थ इज फिजिकल ऑल्सो एंड मेंटल ऑल्सो, माइंड ऑल्सो. तो जितना हो सके शांत रहो, काम रहो, पैनिक मत करो. बिकॉज जब आप स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है, तो क्या होता है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या? हेयर फॉल. एंड जितना ज्यादा हेयर फॉल होता है उतना ज्यादा और स्ट्रेस आता है. सो जितना हो सके माइंड को शांत रखो, मन को शांत रखो. जो भी काम करोगे ना, ट्रस्ट में उसमें अपना 100% दे पाओगे. नाउ वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे. आप ये रियलाइज कर रहे हो कि आपको लाइफ में कितना कुछ मिला यार. ट्रस्ट मी, समवन इज रेडी टू डू एनीथिंग टू लिव द लाइफ दैट यू आर लिविंग राइट नाउ. आपके पास घर है, छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, पेरेंट्स है, पढ़ाई के लिए बुक्स है, पैसे है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको घर से फैमिली सपोर्ट कर रही है. इतने लोग होते हैं जिनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती है. मेरा सीए जब मैं कर रही थी ना, मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि यार प्लीज़ मुझे पास कर दो. आई प्रॉमिस, आई एश्योर यू कि जब मैं सीए बनूंगी ना, मैं बहुत सारे सीएस की हेल्प करूंगी. एंड जब आपका पर्पस बड़ा होता है ना, जब आपका मोटिवेशन बड़ा होता है ना, आई मीन जब आपका पर्पस बड़ा होता है, अपने आप यार वो मोमेंट के लिए आप कुछ भी करोगे. वो मोमेंट के यू विल बी लाइक आई वॉन्ट टू लिव दैट मोमेंट. बस माइंड में एक ही चीज़ थी यार, उस दिन के लिए ना आई डू, जितनी मेहनत चाहिए सब कर लो. मेरा बर्थडे सीए के एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही आता था. एंड आई रिमेंबर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि यार मुझे अगर अगला बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, अगला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अगले दिवाली, होली, नवरात्रि यार आई अंडरस्टैंड द पेन कि नवंबर में एग्जाम्स और नवरात्रि भी तभी आती है. तो यहाँ अहमदाबाद में तो यार कितने लोगों को गरबा खेलना पसंद है. ए हालो. तो आई रिमेंबर कि एग्जाम से पहले ही सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बट अगर आप एक बार सही से सारी चीजें सैक्रिफाइस कर दोगे ना, तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा. इसलिए जो भी मिल, हेलो, आर वी हियर? एवरीवन जोर से. ऑसम. तो अगर एक बार सही से सैक्रिफाइस कर दोगे ना, तो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी. एंड आई टेल ओनली दिस वन थिंग एंड दैट इज डू एवरीथिंग. लोग मुझे पूछते हैं कि सी के साथ साथ ये कैसे, क्या? आई विल टेल यू वन सीक्रेट एंड दैट इज, जितने भी लोग अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज करना चाहते हैं या सी के साथ और बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, सी ए, योर लाइफ इज नॉट मेंट टू बी लिव, ईट, डू सीए एंड स्लीप. योर लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. सीए बनो, बट सीए के बाद बहुत सारी चीजें यार करने के लिए. बट एक बार दिस डिग्री इज गोइंग टू गिव यू, सीए इज नॉट जस्ट अ डिग्री, it is going to give you so much of freedom, it is going to give you that confidence, it is going to give you that until ये क्या यार अब आप कुछ भी कर सकते हो. it is going to give you so much of respect, it is that pathway. अगर यहाँ से पास हो जाओगे ना, immense opportunities मिलेगी. trust me on this, immense opportunities. बस उसके लिए एक बार का त्याग, एक बार की मेहनत और एक बार का sacrifice ज़रूरी है. so be grateful for everything that you have in your life. जितना हो सके स्ट्रेस मत लो, बी काम, बी कंपोज. एंड एक चीज में मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ. डू यू वांट टू नो? बता दूं? एंड दैट इज, लाइफ में कुछ भी चीज अचीव करनी है ना, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए. आई हैव रियलाइज दिस इतने सालों के बाद. आई विश ये चीज मुझे कोई पहले बता देता, ताकि मुझे खुद गलतियां करके नहीं सीखनी पड़ती. अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, you need only this one thing, and that is
जिद, किसी चीज़ का कोई ऑब्सेशन, मैड ऑब्सेशन, एंड देन अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो ना, इट कुड बी फिटनेस, इट कुड बी डिग्री, इट कुड बी पढ़ाई, अगर आपके पास मैड ऑब्सेशन है ना, पागलपन है यार कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, जब जिद है ना तो भगवान भी नहीं रोक सकते। फिर भगवान बोलेंगे यार बच्चा रोता है बलून के लिए, एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, तीसरी बार में पेरेंट भी बोल रहा है इसको चुप कराओ, बलून दिला देते। द पॉइंट इज जब आपके पास एक जिद होएगी ना कोई चीज़ करने की, ट्रस्ट में आपको हर चीज़ मिलेगी। एंड वन थिंग दैट आई बिलीव इन इज कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। एक बार साथ में बोले क्या? जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। ठीक है, मैं बोलूंगी जब जिद्दी होगा दिल, आप बोलना जरूर मिलेगी मंजिल। ठीक है, लेट्स डू इट टुगेदर एवरीवन। जब जिद्दी होगा दिल, जब जिद्दी होगा दिल। सो आई विश यू गुड हेल्थ। लाइफ में जो भी करो, बी हाउ मच टाइम डू वी हैव मोर? टाइम है? अच्छा ओके यार वो बोल रहे हैं हेलो अभी यार। ओके लेट्स डू इट वन मोर टाइम। जब जिद्दी होगा दिल, जब जिद्दी होगा दिल। ऑसम। सो आई होप आई इंस्पायर्ड यू थोड़ा सा टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेक श्योर कि आप सब हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, एंड लाइफ में जो भी करो ना बस अपने साथ ईमानदारी रखो यार। आप दूसरों को झूठ बोल सकते हो, आप पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हो, आप घर वालों को झूठ बोल सकते हो, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना। बिकॉज समवेयर वी ऑल नो कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। वी ऑल नो कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तो जो इंसान अपने साथ सच रहता है ना, अगर गलती हो भी गई यार, इंसान हो परफेक्शन एक्सपेक्ट भी मत करना। कोई गलती हो गई, सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि गलती क्या थी, कहाँ आप उसको चेंज कर सकते हो, क्या करेक्ट कर सकते हो, एंड देन गिव योर 100%। बिकॉज दिस इज़ द टाइम, आप अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मज़े कर रहे होंगे या फिर इंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, यू आर गिविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन दिस डिग्री। तो आई डोंट वॉन्ट दैट इतना इम्पॉर्टेंट टाइम आप को गलत ट्रैक पे लेके जाए। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड लाइफ में अगर सोच ही रहे हो ना तो बड़ा सोचो। बिकॉज मे बी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सपना, मतलब मैं तो सीए करने भी नहीं वाली थी। कितने लोग, आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू, कितने लोग ऐसे थे जो सीए नहीं करने वाले थे? ओ लॉट ऑफ फैंस। तो मैं सीए नहीं करने वाली थी, सीपीटी का लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का। मैंने सोचा अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रजिस्टर कर लेते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे भी नहीं करना है। रजिस्टर कर लिया एंड सीए फाउंडेशन आई क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ऐसा लगा यार मतलब करना भी नहीं था और क्लियर भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद आता है इंटर। इंटर में आई मेड मिस्टेक नंबर 2 एंड दैट इज़ मैं बहुत डबल माइंडसेट से करी थी, सीए करूँ या नहीं करूँ, मे बी कुछ और करूँ, मे बी अपना पैशन फॉलो करूँ, या फिर शुड आई स्विच, क्योंकि मुझे तो सीए करनी नहीं थी। बट उस रीज़न की वजह से आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि लाइफ में कुछ भी करो ना, मेक अप योर माइंड एंड देन गिव योर 100%। बस एक बार वो आई थिंक वो 3 इडियट्स में बोलता है कि भाई अगर सोच ही लिया है शिमला जाना है तो गाड़ी घुमा। एक बार सोच ही लिया है ना, कौन सी मूवी है वो? 3 इडियट्स। हाँ, तो एक बार डबल माइंडसेट से मत करो, कोई भी चीज़ डबल माइंडसेट से मत करो, करूँ नहीं करूँ, मैं भी कुछ और करूँ। जब डिसाइड किया है, सीए बनना आपका डिसीजन था, आपने डिसाइड किया डे 1 पे कि मैं सीए बन के रहूँगा। अब जब घुसे हो ना इसमें तो छोड़ो मत, फिर सीए बन के ही निकलो। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। यार कभी लाइफ में मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, आई विल गिव यू द बेस्ट मोटिवेशन। भाई कितने भी आप मोटिवेशन लेक्चर सुन लो, बट ये चीज़ आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी एंड दैट इज़ एक दिन जब कुछ नहीं समझ आ रहा है ना क्या करना है, एक दिन कुछ भी मत करो एंड डू दिस ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ सुबह से रात तक बस अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो। आई टेल यू व्हाई। सुबह उठोगे जल्दी जग जाना उस दिन, देखना आपकी मम्मी जग गई है, किचन में टिफ़िन बना रही है, पापा को ऑफिस के लिए रेडी कर रही है, उनको घर के फाइनेंसेस संभालना होता है, ऑफिस का काम संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, आपकी क्लासेस है, दे हैव टू मेक श्योर आपको टेबल पे आ जाओ, आपको खाना रेडी मिल जाता है, आप
कबर्ड खोला आपको कपड़े रेडी मिल जाते हैं, हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है। एक दिन कुछ मत करना, आप रियलाइज़ करोगे उनकी लाइफ बन गई है। अगर अभी भी वो मेहनत कर रहे ना, सो इट इज़ ओनली बिकॉज फॉर यू, आपके लिए कि भाई मेरा बच्चा को, मतलब मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो, वो सीए कर रहा है, उसको राइट एनवायरनमेंट मिले, उसको राइट गाइडेंस मिले, हम उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पापा एक ट्रिप पे थे बैंगलोर में अभी, एवरी डे मेरा कोई भी सेशन होता है, कोई भी इवेंट होता है, एवरी डे उनका मैसेज आ जाएगा, हैव एन एक्सीलेंट ट्रिप, हैव एन एक्सीलेंट सेमिनार, हैव एन एक्सीलेंट डे, एवरी डे। जब भी मैं सेशन करने जाती हूँ, हैव अ ग्रेट सेशन। एंड आई टेल यू वन थिंग यार, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहता है, हर पेरेंट चाहता है कि यार मेरा बच्चा सबसे आगे हो। एक बात याद रखना, योर पेरेंट्स आर वेटिंग कि कब वो जाके दूसरों को बताए कि यार मेरे बच्चे ने ये किया है, एंड गिव देम द चांस टू ब्रैग अबाउट योर सेल्फ। अगर कोई छोटी चीज़ भी होती है ना, मेरे पापा को जाके हर चीज़ फेसबुक पे डालनी होती है, अपने पेरेंट्स को मौका दो यार, मेक देम फील प्राउड, उससे ज़्यादा खुशी कोई है ही नहीं। जिस दिन आप रियलाइज करोगे ना कि आपके पेरेंट आपकी वजह से खुश है, यू आर द रीजन फॉर देयर हैप्पीनेस, आपको लगे यार कि यार भाई कर लिया लाइफ में, मतलब दैट इज सो। कभी भी अगर आपको लगे कि मोटिवेशन नहीं है, एक दिन बस उनको ऑब्जर्व करना यार, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। आई टेल यू कि प्लीज़ आपको रियलाइज होगा कि आपके सपनों के लिए आपसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप लाइफ में आप जो भी करो बहुत बहुत सक्सेसफुल बनो। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एक चीज़ याद रखना, फेल हो जाओ, अगर पास हो जाओ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो पाए तो रियलाइज की गलती कहाँ हो गई थी, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। एक दो दिन इट इज ओके, बट योर कम बैक हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर। रियलाइज करो कहाँ गलती हो गई थी, रियलाइज करो मिस्टेक क्या हो गई थी, एंड देन मेक श्योर कि यार वो गलती ना अगली बार में रिपीट मत करना। सिंपल। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोल के धोके बैठ जाते कि भाई अब समझ ही नहीं आ रहा यार, पिकअप योरसेल्फ। नो, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। So that was it. Thank you so much everyone. Thank you Ahmedabad. Thank you so much. I hope you enjoyed, or all the best for your results. And thank you so much. In case if you feel कि you need guidance, you want to talk to me, you can reach out to me on my social media platforms. Thank you so much. All the best. This was C.S. Surbhi Gandhi signing off. Thank you. Thank you so much, Surbhi Gandhi ma'am. I would now like to request Miss Sarangi Bhoot to give vote of thanks to Miss Surbhi Gandhi ma'am. I extend my sincere thanks to C.S. Surbhi ma'am. Your insight into integration of a fitness with our professional were both inspiring and practical. I would like to end with one शायरी। सुबह की ताजगी, शाम की मिठास, फिटनेस से मिले जीवन की आज। थैंक यू मैम, थैंक यू।